राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम डिपार्टमेंटच्या वतीने आज दिनांक 24 रोजी पर्यटन पर्वाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। या पर्यटन पर्वात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या सर्व डिपार्टमेंटचे विद्यार्थी आणि प्राध्यापक हे या ठिकाणी येतील आणि या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या आयटनरीचा लाभ घेतील। भारतातील संपूर्ण देशातील व राज्यातील विविध प्रकारचे पर्यटन स्थळ आपल्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे। या पर्यटन स्थळांचा लाभ घेण्याचे आवाहन प्रवास व पर्यटन विभागाच्या वतीने करण्यात आलेले आहे। आपल्या देशामध्ये ऐतिहासिक स्थळांचा मोठा समावेश आहे। त्याचप्रमाणे निसर्ग सौंदर्य, समुद्र किनारे, पहाड, बर्फाच्छादित प्रदेश, घाटी अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणात पर्यटनाच्या सुविधा आपल्या देशामध्ये पाहायला मिळते। हा देश विविधरंगी बहुरंगी असल्यामुळे अशा प्रकारचे सगळे स्थळ आपल्याला या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून समजून घेता येईल याकरिता पर्यटन पर्वाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। Thank you, sir. Now I request Nilesh Lanjewar sir to address the gathering. A very good morning to one and all present here. It's an honor and privilege I am sharing the days with sir. He's a very known and a popular name in Nagpur for tourism. I don't have to say anything about him. His work has spoken and people know about from a long time in Nagpur. Today we all are gathered here for celebrating the exercise Pariyatan Parv 2025. Now why we let a person understand the product and develop an urge in him that he should be ready to take it from you, ready to buy from you. For that, the base is knowledge. Please collect information, enhance your knowledge, know your product, each and everything. For example, if you promote any destination, when to go, how to go, where to stay, what are the events happening when you are visiting or when you are sending your client. Now coming to, if you talk about India is one-stop destination. One-stop destination, like you have waterfalls, you have temples, you have forts, you have palaces, you have beaches, you have blah blah blah, you ask and we have everything. But then still we are not having that international flow. Or the flow which was there, for example, we all are aware about like Goa this year, what has happened with Goa. But then talking about the positive side, we have so much to offer to the world. But then again we are lacking in put into a proper framework, because you cannot start from anywhere and stop at anywhere. And then design your product, design yourself with an attitude that I am here to serve the industry. As we all know, this is the second largest industry in the world and occupied every 16th person in the world. You are also one of them, and we are here for a longer time. And we have to make the place. Let's see the one thing, like again the attitude. Your attitude is very important. Think that we have to
preserve our heritage, we have to promote our heritage, and we have to collect or generate revenue and employment at the same time. I won't take much time of yours because sir is waiting. He has more experience to share. But whatever I have discussed with you, hope this enhances your skills and develops your knowledge. Thank you so very much for giving me an opportunity. Thank you, sir. Thank you very much. And all my dear friends and students, thank you so very much. Now I request Pawan Pathak to give vote of thanks to Nilesh Nanjivar, sir. We are very honored and privileged to have you here, sir, and we will remember your words. Like as you said, we as a tourism professionals, we need to have good communication and knowledge about the destination and information. So I think it will be very helpful for us all, and I really hope. सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे सभी मित्र, आज हमारे बीच व्यवस्थापकीय संचालक श्री हरमनदीप सिंह आनंद विशेष रूप से पर्यटन पर्व में उपस्थित है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने यह हमारा सौभाग्य है। खास बात यह है कि हरमनदीप सर के चाचा जी सन 1972 में भारत से लंदन और वापस आने का सफर अपनी 2 व्हीलर से 6 महीने में पूरा किया है। वह भी उस दौर में जब गूगल मैप्स नहीं हुआ करते थे। सर भी उसी जोश से काम कर रहे हैं। यह उनकी उपलब्धियां से दिखाई देता है। से बढ़ती है, घटती नहीं है, और आपकी कंपटीशन जो है वो भी आपके साथ जुड़ी जाती है। तो इंडस्ट्री में जैसे जैसे आप नॉलेज शेयर करते हो, तो हम पहले सन 72 से शुरू करते हैं, जो इन्होंने कहा कि 6 महीने, ऐसा नहीं है कि 6 महीने लग गए उनको जाने और लाने में, इतना लंबा समय नहीं लगता है। तो जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरा 72 का बर्थ है, मेरे चाचा जी उसी साल में, जब मेरे बर्थ के शायद 6 महीने के बाद उन्होंने अपना ट्रिप प्लान किया होगा 1973 के आसपास। वो और उनके मित्र मिस्टर उल्लास खेलकर, मेरे चाचा जी का नाम जगतार सिंह सेठी, ये दोनों और इनके 2 और मित्र साथ में इन्होंने प्लान किया। अब ये प्लानिंग आप लोग आज कैसे करते हैं प्लानिंग? अभी आइटनरी प्लान कर रहे हैं ना पर्यटन पर्व के लिए, आज आप लोग प्रेजेंट करने वाले हैं, बहुत सारा होमवर्क किया होगा सबने। आज मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आइटनरीज जो बनाए हैं वो कैसे बनाए? चलो स्टेट का मैप डाउनलोड करके वो डेस्टिनेशन सबने देखे। आपने सबको एक एक रीजन दिया होगा या सबने एक टॉपिक लिया होगा कि मैं उड़ीसा पे आइटनरी बनाना चाहूँगा, मैं गुजरात में बनाना चाहूँगा। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी? कि किस तरह से इस इंडस्ट्री में मैं और बेटर क्या कर सकता हूँ। घर की बिजनेस हमारे हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, बट क्योंकि चाचा जी की कहानियाँ सुनी हुई थी, ट्रैवल का शौक था, 92 में 30 दिन के लिए बैकपैकिंग के लिए एक बैग लेके 2 जोड़े जूते के लेके पूरे घिस गए थे। हर रोज 8 घंटा एवरेज सर मैं यूरोप में पैदल चल के घूमता था ताकि मैं मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकूँ। तो 30 दिन की जो मेरी ट्रिप थी, 28 दिन का यूरेल पास मिलता था। एम्स्टर्डम से शुरू किया था, ग्रीस में जाके मैंने ख़त्म किया था। 26 सिटीज़ मैंने कवर की थी और रोज़ मैं एक पोस्ट कार्ड अपने दादाजी को यहाँ पे भेजता था। वो सारे उन्होंने इकट्ठे करके रखे थे, सब मेरे पास आज भी है। तो वो एक्सपीरियंसेस कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज ये है, वो यादें हैं। आपको शायद पता ही नहीं होगा पोस्ट कार्ड क्या होता है, स्टैम्प क्या होता है, कैसे भेजा जाता है। मैं तो कलेक्टर हूँ, मैं फिलेटलिस्ट भी हूँ, न्यूमिस्मेटिक भी हूँ, कॉइन्स भी कलेक्ट करता हूँ, स्टैम्प भी कलेक्ट करता हूँ। टाइम निकाल लेता हूँ जब टाइम मिलता है। बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम फैमिली के लिए भी निकालना पड़ता है। तो आपको लाइफ को थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना काम कर सको। जब कोविड हुआ तो हमने वर्क फ्रॉम होम कर दिया। वी वर द फर्स्ट वंस इन इंडिया टू क्लोज आवर ऑफिस
We were the last ones in India in the travel industry to start our office, and not a single staff was made redundant. Yes, iConnect करके एक ऐप है हमारी, वो लॉन्च कर रहे हैं. उसका नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन आज शाम को और कल के बीच में ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में जाना आप लोग भी रजिस्टर कर सकते हो, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो. इट इज़ नॉट अ लिंक्डइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ कनेक्ट प्लेटफॉर्म. धीरे धीरे आपको समझ आएगा जब आप उसमें जाएंगे कि क्या है, आपके काम की क्या चीज़ हो सकती है, आपके नॉलेज में कैसे आ सकता है, आप किससे कहाँ मिल सकते हो. तो 10 साल पहले अगर आप किसी से मिले तो आपको याद नहीं रहता, चेहरा याद आता है बट ये नहीं कनेक्ट होता कि इसको काम है. तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसमें आज लेके आ रहा हूँ. तो GPS में टूरिज्म बोर्ड्स, एयरलाइंस, नेशनल और डोमेस्टिक टूरिज्म बोर्ड पार्टिसिपेट करते हैं, टूर ऑपरेटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इवन कंपनीज लाइक ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन, मेक माई ट्रिप, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं. आप ये सोच के मत आइएगा कि वहाँ पे आपको जॉब लग जाएगा, कि अभी हमने वो उसके अंदर तैयार शुरू नहीं किया है. बट एक नॉलेज इंफॉर्मेशन जो है कि क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में आज अगर नागपुर में कोई है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कभी ना कभी किसी लेवल पे वो जुड़ा होगा, किसी की हमने हैंड होल्डिंग की होगी. तो अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी क्रिएट होती हैं. ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसा है कि वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे है. अब आने वाले 2 डेकेड्स तक तो जब तक कि कोविड के जैसा कुछ बड़ा नहीं आता, कोई महामारी नहीं आती है, इस इंडस्ट्री को कोई टच नहीं कर सकता. एयरलाइन भी बढ़ेगी, सबकी ग्रोथ अच्छी है, होटल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी. होटल इंडस्ट्री जो मैंने कहा कि 2 ही लोग हैं, कोविड के बाद ऐसी सिचुएशन हो गई, क्योंकि एक तरफ एम्प्लॉय मिलता नहीं है, दूसरी तरफ एम्प्लॉय मिलता है, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है. सेम चीज़ जब मैं US गया इस साल, तो मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ टिपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित है, कि टिप देना एक तरीके से मैंडेटरी है. मतलब आप जाके किसी से पेस्ट्री शॉप में से पेस्ट्री भी ले रहे हो ना, वो ओवर द काउंटर आपको अगर पेस्ट्री दे रहा है तो वो बोलेगा सर टिप कितनी ऐड करनी. पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था 10% का, अब कॉन्सेप्ट हो गया 18 से लेकर 10% के बीच में. उसमें लिख क्या है 18%, 20%, 22%. आप समझा के दो, आप अगर बोलोगे कि मैं कहाँ स्टे करूँ, मुझे नहीं करना होता, तो वी कैन प्रोवाइड यू हॉस्टल्स ऑल्सो. बजट में भी आपको काफी दे सकते हैं. यस, वी ऑल्सो हैव आफरी ट्रैकिंग का है. एवरेज का तो बहुत अच्छा है. हिमाचल में भी लेके जाते हैं टूरिस्ट वगैरह. हिमाचल में भी बैकपैकर्स. हिमाचल का क्या कॉस्ट है आपका? देखो हिमाचल में हमारा 15,000 से स्टार्ट होता है. 15,000 तो बहुत महंगा नहीं हो रहा है मतलब. सर देखिए, कंपनी पैकेजेस प्रोवाइड करती है. अगर आपको कम बजट में भी चाहिए, अगर आपको कस्टमाइज हो सकती है चीज़ें. 3 नाइट 4 डेज चाहिए, मैं आपको 3 नाइट 4 डेज का भी कर दूँ. 2 नाइट मनाली एंड 1 नाइट कसौली. इफ यू वांट a leisure travel, if you want to travel for a week, full week, so I can do for you that. If you want 3 star, if you want 3 star deluxe, if you want 4 star, if you want 5 star.